हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स। मैं आज आपके सामने एक और वीडियो लेके आ रहा हूं, जो वीडियो फैमिली कोर्ट्स से रिलेटेड है कि हकीकत में जब हस्बैंड वाइफ के बीच में इश्यूज होते हैं बच्चे को लेके और आपसी रिलेशनशिप को लेके, हकीकत क्या होती है, जो अभी आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा उसमें आप देखेंगे, और कोर्ट्स के अंदर रियलिटी क्या होती है, इंटरप्रिटेशन क्या होती है, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा वंस यू सी दिस वीडियो। बिकॉज वी रिस्पेक्ट वुमन, देयरफॉर यहाँ पे हमने इस लेडी के चेहरे को ब्लर कर दिया है। एंड दिस कन्वर्सेशन इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन द फेसेस इन दिस कन्वर्सेशन. And this is going to tell you what happens in reality versus what happens in the courtrooms. So let us watch this video. ਛੱਡ ਦੇ ਫੋਨ। हाँ फोन से तो लगी है ना, कुछ गलत थोड़ी ना कर रही है। देख लो किसी ने चैटिंग कुछ थोड़ी ना कर रही है। ਚੈਟਿੰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਨ ਛੱਡ ਦੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈ, ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਿਆਪੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੇਰੇ ਸਿਆਪੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਚਲ ਮੁੱਕ ਗਏ ਇੰਨੇ ਸਾੜਾ ਕਰ ਲੋ, कोई चैटिंग शूटिंग कुछ थोड़ा ना कर रही है। मैं जो करके आई हूँ हमारे घर करके आई थी। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਂ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਚਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੇਰਾ ਐਵੇਂ ਬਾਤ ਹੀ ਬਸ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲੇ ਕੀਤੀ ਹੁਣ कोई नहीं, इन्ने तो चलती है। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਅਗਰ ਸਿਆਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿ 15 ਤੇ 4 ਨੂੰ ਵੜੀਆਂ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਖਾ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੀਕੂ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। माफी मंग, अपनी कुड़ी दी गलती सामने ना आएगी, ये वो ऐ कोई गल थोड़ी हुंदी है, तां ही तो मैं रोना। ते गलती ते मेरी मैं कर ली ना, गलती की माफी भी मांग चुकी हां, गलती की माफी भी मांग चुकी हां कि 15 तरीक ਨੂੰ मैं गई हां होटल दे विच वरिंदर सिंह दे नाल, तन दस चुकी है, सब कुछ पता लगन तो बाद भी सब कुछ हर चीज की माफी भी मांग ली है, तन दस भी दिता है मैं कि 15 तरीक ਨੂੰ गई हां, 4 बजे सेक्स भी हो गया है, उस तो बाद 4 तरीक ਨੂੰ फिर गई हां, 6-7 ਵਜੇ ਸੈਕਸ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਮੈਂ ਬੋਲ ਚੁੱਕੀ ਨਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਮਾਂਡ ਟੁੱਟੇ, ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ ਮੇਰਾ। ਕਮਾਂਡ ਭਾਵੇਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਉਹ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਚ ਅੰਦਰ ਵਿਆਹ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਿੜਦਾ ਮਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਏਂਗੀ ਤੇ ਖੇ ਖਾਏਂਗੀ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ, ਦੇਖ ਲੈ, ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇਰੀਆਂ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਰੱਖ ਲੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਸੈਕਸ ਚੈਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਕੂ ਤਸੰਨੀ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰੁਕੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 15 ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੋਟਲ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ, पीकू ने भी कमरा किया थी, अपने सत्तू के नाम से, मैं वरिंदर के नाम से होटल के कमरे हुए थे, 3 कमरे हुए थे, वो यार दोस्त थे। पीकू दे जो सत्तू आया था, एक मेरा ते एक पीकू का होया थी। ਝਟਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਯਕੀਨ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗੀ? ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੜਦਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਯਕੀਨ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਰ ਲੈ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਕਰ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਉਖਾੜਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਜੋ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗਲਤੀ ਤੇ ਮੰਨ ਲਈ ਨਾ, ਪੀਕੂ ਤੇ ਧਲੀ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੀਕੂ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੀਕੂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ, ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਬਣਾਂਗੀ ਕਦੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੀਕੂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਾਕਈ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਔਰ ਐ ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਰੱਖ, ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਰੱਖ, ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ, ਨਿਕਲ। ਪਰ ਮੈਂ
तो जैसे अभी आपने इस वीडियो में देखा कि वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, शी वेंट टू हर होम टाउन और टू हर मदर्स प्लेस वेयर शी स्लेप्ट विद अ मैन फॉर 4-5 days and this was not enough. In fact, she had also taken her 3.5-year-old daughter with her. आप समझ सकते हो उसको क्यों लेके गई होगी, so that कोई शक ना करे. And what it indicates is, in fact, she confesses also somewhere that she had sex in front of her daughter with her lover. आप देखेंगे कि हस्बैंड बार बार वहां पे दिखा रहा है कि मेरे पास चैट के एविडेंसेस है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास विटनेसेस हैं, जो लोग एडजॉइनिंग रूम में होटल के थे, ब्ला ब्ला ब्ला. पर उससे भी उस लेडी को कोई असर नहीं हो रहा है. वो कह रही है भाई तूने जो उखाड़ना है उखाड़ ले, तू जो कर सकता है कर ले. दैट इज द कॉन्फिडेंस. एंड शी सेज इफ यू थिंक यू आर गोइंग टू ब्रेक माय प्राइड, फॉरगेट अबाउट इट. And eventually, the last line she says is, "Okay, get lost. If you want to keep me. Otherwise, get lost." Now, अब आप ये देखिए, ये हस्बैंड को भी मेरे ख्याल से ये भी जानता होगा, जबकि हस्बैंड यहाँ पे क्या कर रहा है, वो अपना घर बचाने की कोशिश कर रहा है. अगर आप उसकी टोन ऑफ वॉइस देखेंगे, उसकी टोन ऑफ वॉइस बड़ी रिक्वेस्टिव है, वो बड़े आराम से बात कर रहा है, तो वो एक रिक्वेस्टिव है और वो घर अपना कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रहा है. इसका शायद एक और रीजन ये भी हो सकता है कि शायद वो रिकॉर्डिंग कर रहा हो, इसलिए उसकी टोन ऑफ वॉइस रिक्वेस्टिव हो. ये भी हो सकता है. आई विल नॉट डिनाई दैट. बट हैविंग सेड व्हाट आई सेड, अब ये देखिए जो लेडी है वो कितनी फियरलेस है, उसमें कोई रिग्रेट नहीं है. आई एम श्योर हस्बैंड भी ये चीज जानता होगा. ये जो सो कॉल्ड एविडेंसेस हैं, अगर वो अपने घर से बाहर लेके जाएगा, जबकि ये कहीं ना कहीं बाहर आ गया है पब्लिक डोमेन में, अगर वो उसको बाहर लेके जाएगा तो उसकी फैमिली की बदनामी होगी. अगर वो कोर्ट में लेके जाएगा तो फैमिली की बदनामी होगी और कुछ नहीं बच पाएगा. ये जो किताब अभी मैंने हाल फिलहाल में लिखी है, हाउ टू सेव हेवनली मैरिजेस बीइंग डिस्ट्रॉयड ऑन अर्थ, इस किताब के अंदर भी मैंने ये एक्स्ट्रा मैरिटल के बारे में और एडल्ट्री के बारे में बहुत बात करी है, और इसको हम रिकंसाइल कैसे कर सकते हैं वो भी मैंने इस किताब में बताया है. बट कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर केस, आप देखिए कोर्ट्स के अंदर अगर हस्बैंड को लगता है जो उसके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, चैटिंग है, XYZ है, इट इज गोइंग टू हेल्प हिम इन द कोर्ट रूम्स. इट माइट हेल्प हिम इन द कोर्ट रूम्स आफ्टर 3, 4, 5 years. But I can tell you, in 9 out of 10 cases, even if the husband takes wife to the court, वाइफ उसके ऊपर DV का केस कर देगी, मेंटेनेंस का केस कर देगी, 125 के अंदर केस कर देगी, बहुत केसेस हस्बैंड के ऊपर कर देगी और हस्बैंड से मेंटेनेंस लेना शुरू कर देगी. और कुछ केसेस में तो हस्बैंड्स को उनके अपने घरों से निकाल दिया जाता है. जो इस लेडी ने वो बात बोली एंड में, गेट आउट. उसने ये नहीं कहा कि मैं ये घर छोड़ के जा रही हूं क्योंकि मैंने गलती करी. उसने क्या बोला, गेट लॉस्ट. तो ये कहीं ना कहीं ये भी जानती है कि अगर हस्बैंड को लगता है कि उसके पास एविडेंसेस है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडियन कोर्ट्स, खैर कानून तो अंधा होता ही है, यहाँ तो जजेस अंधे भी हैं, बहरे भी हैं और शैलो भी हैं. इन लोगों में दिमाग भी नहीं है कि ये लोग जो एविडेंसेस उनके सामने पुट किए जाते हैं, रियली दे विल लुक इनिशियली एट द एविडेंस. ये कहेंगे जी एविडेंस की स्टेज आने दो तब हम देखेंगे. इंटरिम ऑर्डर कुछ नहीं मिलेगा. इंटरिम ऑर्डर वाइफ के केस में मेंटेनेंस भी मिल जाएगी, बच्चे की कस्टडी भी मिल जाएगी, फादर को बच्चे से दूर भी रखा जाएगा, पेरेंटल एलियनेशन भी हो जाएगा. तो वाइफ डिस्पाइट डूइंग दिस कुकर्म विल सर्टेनली गेट एंड हाउस ऑल्सो, मेंटेनेंस ऑल्सो, चाइल्ड ऑल्सो, एंड हस्बैंड बीइंग अ विक्टिम will continue to struggle for at least 3, 4, 5 years. उस दौरान भी 3-4 फैमिली कोर्ट्स के केसेस हस्बैंड के अगेंस्ट आ जाएंगे और वहां पे जो उसका एविडेंस होता है, जो कोर एविडेंस है कि वाइफ वाज इन्वॉल्व इन एडल्टरी, वो कहीं ना कहीं बिलिटल होना शुरू हो जाएगा क्योंकि बाकी फैमिली कोर्ट्स हस्बैंड को किसी ना किसी वजह से गुनहगार ठहराना शुरू कर देंगे. एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री टुडे.
and this has to be changed. This needs to be changed. The question is, who will change it? These shameless judges, these incompetent, untrained judges, इनके तो बस का नहीं है. तभी मैं बार बार कहता हूं, फैमिली कोर्ट्स को साइकोलॉजिस्ट को देना चाहिए या साइकोलॉजिस्ट को जजेस के साथ बिठाना चाहिए. दूसरी बात विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट इज कि मैं देखता हूं कि बहुत सारी ये पेरेंटल एलिनेशन या मेन कमीशन बनी हुई हैं जिनके ऊपर फॉल्स केसेस उनके वाइफ्स ने करे हुए हैं, स्पाउसेस ने करे हुए हैं, एक्स वाइफ्स ने करे हुए हैं, पर वो लोग आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं. तो जब एक कहता है अभी मैं तो सिर्फ पेरेंटल एलिनेशन से ही रिलेटेड डिस्कशन करूंगा, दूसरा कहता है अभी मेरा बच्चा नहीं है पर मेरी वाइफ ने तंग किया तो मैं इससे रिलेटेड करूंगा. तो क्योंकि इन लोगों में आपस में ही इतने लड़ाई झगड़े हैं, इतने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इतनी स्ट्रैटेजीज हैं, इस वजह से ये जो इस कंट्री में मूवमेंट बन के अभी तक खत्म हो जानी चाहिए थी, अभी शुरू भी नहीं हुई है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मेन कमीशन है और ये जो बाकी के जो संगठन है, इन लोगों को चाहे पेरेंटल एलिनेशन से हो, चाइल्ड कस्टडी से हो, दे शुड स्टार्ट प्रोटेस्टिंग इन फ्रंट ऑफ फैमिली कोर्ट्स. I will not recommend them to protest in front of Supreme Court for a simple reason कि Supreme Court की false जो ईगो है वो पहले आ जाएगी और अगर ये प्रोटेस्ट करेंगे वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट देखेगा ही नहीं, क्योंकि उसको होगा हमारे ऊपर कैसे अटैक कर दिया. अभी हम तो भगवान से कम थोड़ी ना, भगवान को बनाने वाले भी ये हम लोग हैं. तो ये उनकी ऐसी धारणा है. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ये लोग फैमिली कोर्ट्स में जाके प्रोटेस्ट करते हैं, वहां पे शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट बैक करेगा कि नहीं यार कुछ तो गलत हो रहा है, इसलिए लोग फैमिली कोर्ट में जा रहे हैं. तो माय सजेशन टू देम इज डोंट थिंक ऑफ गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट और डोंट कीप moving around to law ministry and other ministries and other political parties, क्योंकि इन सबको सब कुछ मालूम है, इनको आपसे ज्यादा मालूम है. The point is how do we bring in reforms, and these reforms are critical and it can only start if all of you are united, all the men with or without children are united for this cause. And secondly, you need to protest in front of, and it should be a peaceful protest with placards in front of family courts. If you like this video, kindly share it far and wide. Thank you so much.